Hello students, today we are going to start our next topic in the force and laws of motions chapter. Okay, so before we starting a new topic, that is the Newton's third law. But before we starting this topic, let us take a brief preview on the previous lecture. Yesterday we have discussed the Newton's second law and the derivation of the second law. Okay, and before that we have discussed what is the force and its effects, and what is the balanced force is, what is the unbalanced forces, how the balanced forces will take a place, how the unbalanced forces will take a place, and force of friction. Then we have discussed the Galileo's experiment. Then we have discussed the Newton's first law. Also we have discussed the inertia, law of inertia. Okay, suppose if you ask in the examination that what is the law of inertia, that you have to write the Newton's first law for it. Okay, an object remains in a state of the rest or in a uniform motion in a straight line unless compelled to the change that state by an applied force. This statement is compulsory and necessity for writing the first law. Okay. So if you have to move the object, or if you have to give the if you have to change the direction of the object, then you have to give the force, and that is defined in the Newton's first law. Also in the second law we have discussed about the momentum, and the Newton's second law will be as given: the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of the force. This will be discussed in the previous lecture. Also we have discussed the unit. Okay, now let us take the brief discussion on the Newton's third law. So Newton's third law of the motion states that to every action there is an equal and opposite reaction, and they act on the two different bodies. It means that every action has an equal and opposite reaction. So first we have to denote what is the action. Actions means you have given the action. मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो वो काम करने के लिए जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से, वो उतना ही ओपोज में और इक्वल में क्या करे, इक्वल ही ओपोज में फोर्स लगाएगा. एंड बेस की यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाई 100 न्यूटन का जो है वो मैंने पुश करने की ट्राई की है. तो ये 100 न्यूटन वाला जो है वो पूरा का पूरा इसको खींचने के लिए वापस सामने से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा. ओके, स्प्रिंग को जैसे अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ और स्प्रिंग को मैं यहाँ पर लगाने के बाद उसको खींचूँ, तो वो उतनी ही ताकत करेगा अपने आप को फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए. तो एक तो ये बात हो गई. दूसरी ये बात कि क्या है कि भाई अगर ओपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है. तो उसकी वजह से जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं, पहले एक एक्टिविटी को समझ लेते हैं. Take two spring balances A and B connected together. Fix the spring balance B to the rigid support. When a force is applied by pulling the free end of spring balance A, both the spring balances show the same readings. This shows that the force exerted by the spring balance A on B is equal to the opposite in the direction to the force exerted by the spring balance B on A. यानी कि अगर ए के ऊपर मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ, 100 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर देखो बी के ऊपर भी 100 न्यूटन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लग रहा है. इसकी वजह से वो इसको फिर से खींचने की ट्राई करेगा. तो यही है हमारा थर्ड लॉ कि भाई एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन एंड इक्वल रिएक्शन. ओके, equal and opposite reaction. Statement is very easy. You can easily memorize it, and you have to explain this activity, and you have to draw this activity. Okay, these are the some of the examples for the Newton's third law. When the bullet is fired from the gun, it exerts a forward force on the bullet, and the bullet exerts an equal and opposite force on the gun. It means that it is a reaction and the gun recoils. मतलब कि क्या है कि यहाँ पर देखो, तो हम लोग एक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बुलेट जो है वो आगे जा रही है, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉइल ऑन द गन, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और यहाँ पर से हमारी बुलेट जो है वो आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, इसी वजह से जो है वो बुलेट आगे जा पाएगी. तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, रिएक्शन होगा. यहाँ पर क्या होगा, एक्शन, क्योंकि बुलेट को हमको आगे ले जानी है. तो ले जाने के लिए हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर से जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है,
ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम एज द रॉकेट को अगर हम लोग यहाँ पर रॉकेट ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस रॉकेट को अगर मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एग्जॉस्ट सारे धुएं निकालूंगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करूँगा, एक्शन को लगाऊंगा। तो जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की वजह से जो रॉकेट होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा स्काईज के अंदर। ओके, तो इस तरह से मैंने एक्शन जो है वो नीचे की ओर लगाया है और रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। या तो आप उल्टा भी कह सकते हो कि एक्शन जो है वो मुझे अपर डायरेक्शन में करना है, तो रिएक्शन कहाँ पर करना पड़ेगा, मेरे को नीचे की अपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो जितना मैं एक्शन को ऊपर करूंगा उतना ही इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो फ्लो होगा, और उसी की वजह से ये जो रॉकेट है वो बूस्टअप होके ऊपर चला जाएगा। ओके, same when the sailor jumps out of the boat, he exerts a backward force of the boat, and suppose ki if you have to jump from this boat to the this platform, then you have to jump, then your leg will be push the boat into the this direction and you will goes to the this direction। यानी कि बोट जो है वो क्या चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। आप लोग अगर किसी ने किया होगा एक्टिविटी तो ये पता होगा कि बोट जो है वो पीछे चली जाएगी और आप जो है वो आगे आओगे। ओके, यहाँ पर है वो रॉकेट वाली बात जो मैंने कही थी वो। ओके, तो एक्शन जो है वो नीचे है, रिएक्शन ऊपर हो रहा है। आप उल्टा भी ले सकते हो, आपको जो भी समझ में आया आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर एयर बलून के बारे में बात की है कि भाई एयर बलून में क्या होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, when an air filled balloon is released, the force of the air coming out of the balloon exerts an equal and opposite force on the balloon and it moves upward। यानी कि अगर ये बलून है उसका मैं क्लिप यहाँ से खोल दूँ तो क्या होगा, वहां से एयर जो है वो बाहर निकलेगी और बाहर निकलने की वजह से ये बलून जो है वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। इट मीन्स दैट एक्शन इज given to this direction and the reaction will happen in this direction। when a rocket is fired, the force of burning, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ओके, ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर का, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को शांति से समझना है इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। पहले मोमेंटम आप लोगों को दिमाग में क्लियर होना चाहिए। भाई मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम। हमारा मोमेंटम जो है वो क्या है, तो वो है हमारा, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। यहाँ पर मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे पी से, और उसका मतलब क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, और वी यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है वो, यानी कि वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो होगा हमारा मोमेंटम। तो अगर मान लो कि ये जो मोमेंटम है वो कोई ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर होगा, तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट का मास है एम, तो उसका अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो एम ए होगा। ओके होगा। उसका जो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी है, या तो फिर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, यू। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है यू ए। अब बी है, तो बी ऑब्जेक्ट का मास है एम, यानी कि एम बी। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, तो यानी कि यू बी। अब चार चीज़ें दिमाग में क्लियर कर लो। तो अब जाके ये ऑब्जेक्ट ए जो है, अगर वो बी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, यहाँ से ट्रैवल होके इसको छुएगा, तो क्या होगा, बी ऑब्जेक्ट जो है वो और आगे जाएगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रैवल तो कर ही रहा था, लेकिन इसको टकराने के बाद ये बी ऑब्जेक्ट फिर से कहाँ जाएगा, आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल अप करेगा। और जैसे जैसे आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, क्या होगा, वो फाइनल वेलोसिटी के ऊपर रीच हो जाएगा। अब ए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब वी। बी ऑब्जेक्ट भी फाइनल वेलोसिटी के ऊपर पहुंचा मतलब वी बी। अब मास में कोई चेंजेस होगा, तो मास में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि अचानक से टकराने की वजह से थोड़ा मास चेंज हो जाएगा कोई भी चीज का। ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ मोमेंटम। कि एक अगर सम करें हम लोग,
तो जब भी एक दो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी के ऊपर टकराएंगे तो वो इक्वल जो है उसका कोलिजन होगा, और ऑब्जेक्ट ए का जो फोर्स है वो किसके ऊपर लगेगा, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगेगा, और इसकी वजह से जो है वो उसका मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम यानी कि जो उसका डायरेक्शन है, जो स्पीड है, वो सारी चीज़ें वो चेंज करेगा। क्योंकि यू बी था अभी वहाँ पर वी बी हो गया, यहाँ पर भी यू ए था अभी वहाँ पर वी ए हो गया। इसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। The sum of the momenta of two objects before collision is equal to the sum of the momenta after the collision, provided there is no unbalanced force acting on them। यानी कि इस यहाँ पर देखो तो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई भी नहीं किया गया, और फिर भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो आने की वजह से दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, दोनों के ऊपर फोर्स लगा और दोनों का मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ। This means that the total momentum of the object is unchanged or conserved by the collision। इसके अंदर देखो तो मास कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो मास कुछ चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जब भी मैं इसका एडिशंस करूंगा तो एडिशंस का आंसर तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यानी कि कंजर्व्ड रहेगा, इसके ऊपर कोई भी डिफरेंट कुछ होगा नहीं। सो सपोज कि अगर मेरे को ये मेजर करना है तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं मोमेंटम ड्यूरिंग द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग द कोलाइजन। कोलाइजन के बाद जो हम लोगों को मोमेंटम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, यानी कि ये सेम ही इक्वेशन है, एम वी माइनस एम यू। सिर्फ ऑब्जेक्ट ए के बारे में ले रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर ए लिखा है सारी चीज़ों में। ओके, बाकी तो सारा का सारा सेम ही है। तो एम ए यानी कि वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी, यानी कि डिवाइड बाई टी, यानी कि अभी ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, और वो हम लोगों को पता है कि m इंटू ए यानी कि क्या होगा, फोर्स होगा। सेम वैसे ही अगर b ऑब्जेक्ट के बारे में लें हम लोग तो क्या होगा, सेम ही होगा, एम बी इंटू ए ही होगा। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर मैं दोनों का सेम कंजप्शन लूँ तो दोनों का पूरा जो इक्वेशन है उसमें कुछ भी चेंज होगा नहीं, और यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ है। ओके, देयरफॉर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के अंदर चेंज होगा और कुछ भी चेंज होगा नहीं। हमारा जो फोर्स लग रहा है ए टू बी के ऊपर या फिर बी टू ए के ऊपर, उसमें कुछ भी चेंज होगा नहीं। और यही है हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे करते हैं, अगर इक्वल फोर्स लगाते हैं तो वो ऑपोजिट में इक्वल ही फोर्स लगाएगा। ओके, और ऑपोजिट है इसी वजह से यहाँ पर माइनस का साइन दिया गया है। ओके, सो सारी जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर पुटअप की है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ से वैल्यूज लेके सारी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप की है, तो लास्ट में हम लोगों को ये इक्वेशन मिल जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों सेम ही है। तो ये हमारा मोमेंटम ऑफ द लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन है, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ मैं दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, and question number 2, explain law of conservation of momentum। ओके, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिखनी है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दी गई है। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, फिगर भी ड्रॉ करनी है आप लोगों को। ओके, यहाँ से फिगर भी ड्रॉ करनी है आपको। That's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.